manuscript, Professor Pratapanand Jha, and today's speaker of Tattvada lecture, Professor Rajneesh Kumar Mishra, chairperson of today's Tattvada lecture, Professor Beena Agarwal, and all the participants who are attending this virtual program today. India has immense treasure of millions of manuscripts in several languages and in several scripts spread all over the country. It contains knowledge almost in every field. In order to document and protect this manuscript wealth of our country, National Mission for Manuscripts was established. Today, it is a part of Indira Gandhi National Center for Arts. Main objectives of the mission are to locate the manuscripts, to document, to conserve, to digitize, and the dissemination of the knowledge contained therein. For the awareness and wider outreach, the mission organizes several seminars, lectures, workshops for students and interested persons. Tattvada lecture is one of such outreach programs where subject experts deliver lectures on topics related to Indology. These lectures are published by the mission under its Samikshika series, under its Tattvada series. All the Tattvada lectures are published. And topic of today's Tattvada lecture is Acharya Abhinava Gupta, Works, Manuscripts and Philosophy. Speaker is a very well-known scholar on the subject. He is Professor Rajneesh Kumar Mishra. At present, he teaches at School of Sanskrit and Indic Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. His teaching and research areas involve Kashmiri Shaivism, Buddhism, Sanskrit linguistics, Sanskrit poetics, Asian literature, philosophy of language, comparative poetics, and comparative religion. If I keep on saying everything's very big, but I will want to highlight some of his achievements. Professor Mishra has been associated with national and international academic projects such as Encyclopedia of Hinduism, Encyclopedia of Indian Poetics, and it is under publication, and towards Asian poetics and interface study of India, Korea, China, and Japan. He has published a widely reviewed book titled Buddhist Theory of Meaning and Literary Analysis and Shaiva Philosophy and Literary Theory. He has published several research papers in national and international revered journals. He has also contributed chapters in the edited books and proceedings and has delivered and invited for lectures in India and abroad. Dr. Mishra was awarded Okita Memorial Fellowship by Japan Foundation and the Indian Council for Cultural Relations in 1998. ICCR and Southeast Asian University of Heidelberg had offered Dr. Rajneesh Kumar Mishra a very prestigious chair, Professor Heinrich Zimmer Chair, for 2 years to teach Indian intellectual history. And now I come to today's chairperson, who is also an equally eminent scholar. He is Professor Beena Agarwal, presently working as Senior Fellow, ICSSR, New Delhi, on Kashmiri Bhakti Sahitya or Samakalin Samajik Sandarbha. He was the professor of University of Rajasthan, Department of Sanskrit, University of Rajasthan, Jaipur. And he's always gold medalist. That's a special medal for best academic attainments throughout the career. In 1981, she got a special medal from M.L. Shukharia University, Udaipur.
He was selected for Sanskrit chair by ICCR, Government of India, 2009. He has also published many books. He was awarded Bharati Mishra Prize, Sanskrit Bachespati Award, Sanskrit Vidvat Samman, Agrajati Award, etc. And major research project title त्रिगदर्शन के वाङ्मय में उपलब्ध शास्त्रीय शब्द निर्वचन एक अध्ययन. 31 research articles published, 38 research papers presented, and 28 special lectures delivered broadly on Indian philosophy, Kashmiri Shaivism, poetics, feminism, and Sanskrit scriptures, etc. He has guided 27 students for PhD degree, and he has also published many books, written many books. मेघा प्रधान संपादिका शोध पत्रिका पातंजलि योगो सूत्र जगदीश संस्कृत पुस्तक संस्कृत काव्य समसामयिक संदर्भ अभिनव गुप्त प्रणीत तंत्रालक में कर्म कांड विमर्श etc. Madam, now I hand over the session to you. You are the chairperson of today's Tattvada lecture. सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार. IGNCA के मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर सच्चिदानंद जी, डायरेक्टर प्रतापानंद जी और आज के मुख्य वक्ता रजनीश जी का अभिनंदन, स्वागत. और जैसा कि आज का विषय है अभिनव गुप्त की कृतियां, पांडुलिपियां और दर्शन. रजनीश जी के बारे में बताया ही जा चुका है. बहुत विद्वान अध्येता हैं, गुणी और कीन रिसर्चर जिसे हम कह सकते हैं, और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं. तो उनको सुनने के लिए हम लोग सब उत्सुक भी हैं. और अभिनव गुप्त जैसे एक बहुत विशालकाय, जिसका ओरा जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने न केवल दर्शन बल्कि साहित्य शास्त्र, तंत्र शास्त्र, भक्ति, सभी में उनकी इतनी रचनाएं और इतनी गहन अनुभूतियों से संबंधित, विचारों से संबंधित उनकी रचनाएं हैं, इतनी गहरी. और ये जो उनका विभाजन रेखा है कि दर्शन की रेखा है तो उसमें साहित्य नहीं आएगा, या साहित्य की रचना है तो उसमें दार्शनिक वो नहीं है, सिद्धांत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सारी रचनाएं उनके भक्ति परक स्तोत्र दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण है. तो अभिनव गुप्त एक विराट व्यक्तित्व हैं, जिनके बारे में मैं अभी ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुख्य वक्ता का अधिकार है, यह मुख्य वक्ता का चित्र है. तो उनके बारे में जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत भी अगर कहना होगा तो मैं अंत में कहूंगी. तो अभी मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित करती हूँ कि वह अभिनव गुप्त के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने ओर से जो भी उन्होंने पढ़ा, समझा, देखा, जाना, गुना है, उससे सभी श्रोताओं को अवगत कराएं. मैं आमंत्रित करती हूँ मुख्य वक्ता को, प्रोफेसर रजनीश कुमार मिश्र जी. नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम. और मैं आभारी हूँ IGNCA का, और विशेष रूप से वहाँ के सुविख्यात जो मेंबर सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, और उतने ही यशस्वी जो उसके निदेशक हैं नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के प्रोफेसर प्रतापानंद झा जी का, कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं जो कुछ अपने अध्ययन और शोध के क्रम में पढ़ता समझता रहा हूँ वो आप सबके साथ थोड़ा उसको साझा कर सकूं और आपके विचारों से भी लाभान्वित हो सकूं. इस तत्वबोध व्याख्यान को स्वीकार करने में एक बड़ा ही गौरव और एक दूसरा भय भी पक्ष था कि पता नहीं उतनी तैयारी हो पाएगी कि नहीं. पिछली बार स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा विलंब हो गया इस लेक्चर में, तो आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है. तो मैं चाहूँगा कि स्वयं आचार्य अभिनव गुप्त की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, भगवान शिव की दृष्टि बनी रहे, कृपा दृष्टि, ताकि यह कार्य संपन्न हो सके. तो आरंभ में मैं आचार्य अभिनव गुप्त के ही एक श्लोक से जो मंगलाचरण के रूप में है उससे आरंभ करना चाह रहा हूँ.
और ये उनका बहुत ही विश्व प्रसिद्ध विश्वकोशीय ग्रंथ है तंत्र वाङ्मय का तंत्रालोक, जिसमें वो परादेवी की वंदना करते हुए कह रहे हैं, नौमि चित प्रतिभाम देवीम पराम भैरव योगी मातृमान प्रमेयांश शूलाम्बुज कृतास्पदाम। तो और एक जो उनका, जैसे अभी प्रोफेसर वीणा अग्रवाल जी ने कहा, और उनके अध्यक्षता में कुछ व्याख्यान देने का अनुभव अपने आप में एक गौरव का विषय है, और इसके लिए मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। दूसरा जो उनका मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण इस अर्थ में नहीं है कि वो आरंभ में है किसी ग्रंथ के। ध्वन्यालोक लोचन जो उनका ग्रंथ है, उसके प्रथम उद्योत के अंत में जो लोचन है, उसमें वो वाणी के चतुर्विध रूपों की वंदना करते हैं, और यह भी बड़ा विलक्षण है। यह वंदना भी बहुत विलक्षण है, जिसमें परावाक की वंदना की गई है। यहाँ आपने पराशक्ति की वंदना देखी तंत्रालोक में, परा नौमी चित प्रतिभाम देवीम पराम भैरव योगिनी, तो यहाँ पराशक्ति के रूप में है। इस ग्रंथ में जो काव्यशास्त्र का ग्रंथ है उनका, आप जानते होंगे, आचार्य आनंदवर्धन जो कश्मीर के बड़े ही समादृत काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, और वो दार्शनिक भी हैं। ऐसा नहीं कि केवल काव्यशास्त्र के आचार्य हैं आनंदवर्धन, क्योंकि उनका दर्शन परक भी ग्रंथ है जो आज उपलब्ध नहीं है। तो इस दृष्टि से उस ग्रंथ पर, ध्वन्यालोक पर, जो काव्यशास्त्र का ग्रंथ है, उस पर अपनी टीका, विश्व प्रसिद्ध टीका आचार्य अभिनव गुप्त ने लिखी, जिसका शीर्षक लोचन है। उसी लोचन के प्रथम उद्योत के अंत में वो कह रहे हैं, यद उन्मीलन शक्त्यैव विश्वोन्मीलति क्षणात् स्वात्मायतन विश्रांताम ताम वंदे प्रतिभाम शिवाम। तो यहाँ जो परावाक है उसकी वंदना वो कर रहे हैं। वैसे पराशक्ति, परावाक, परा भक्ति और पराविद्या, ये अपने भारतीय संस्कृति के कुछ केंद्रीय पारिभाषिक शब्द हैं, केंद्रीय अवधारणाएं, जिन पर फिर कभी विचार करेंगे हम। लेकिन इनका जो परस्पर समन्वय है, या इनका जो अंतर संबंध है, वो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। वो विशेष रूप से इसलिए कि हम आचार्य अभिनव गुप्त जैसे एक विराट व्यक्तित्व के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, और अपनी बुद्धि से चर्चा कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका विषय क्षेत्र इतना व्यापक है कि कोई भी एक विद्वान संभवतः उनके साथ पूरा न्याय नहीं कर पाएगा, इतना विशाल उनका। और केवल विविध ज्ञान क्षेत्रों में उन्होंने कोई परिचयात्मक बातें कही हों, ऐसा भी नहीं है। जिस भी ज्ञान विधा में उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की है या कुछ कहा है, वह आने वाले आचार्यों के लिए वह एक आदर्श बन गया, अनुकरणीय बन गया। आचार्य अभिनव गुप्त का जो काल है 10वीं 11वीं शताब्दी का है। कश्मीर के समादृत आचार्य हैं। कश्मीर के इसलिए कह रहा हूँ कि वहां उनका जन्म हुआ, अन्यथा वो तो संपूर्ण भारत विश्व के हैं। तो 10वीं 11वीं शताब्दी से अब तक लगभग 1000 वर्ष बीत चुके हैं। आज तक कोई ऐसा विद्वान अपनी ज्ञान परंपरा में, भारत की ज्ञान परंपरा में नहीं है जो आचार्य अभिनव गुप्त के कथन का खंडन करता दिखता हो। इसके विपरीत जहां भी परवर्ती आचार्यों को अपने पक्ष से कुछ कहना है, उसके लिए, उसके समर्थन के लिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए, अपने सिद्धांत के मंडन के लिए वो निश्चय ही आचार्य अभिनव गुप्त का पक्ष लेते हैं, उनको उद्धृत करते हैं। तो ऐसी उनकी महत्ता है भारतीय ज्ञान परंपरा में। तो एक बार हम यदि उनके पहले जिस स्वरूप का हम वर्णन करने जा रहे हैं, मैं उनके ग्रंथों और पांडुलिपियों पर थोड़ी देर में चर्चा करता हूं आपसे। लेकिन वो इतने समादृत क्यों है, क्या कारण है ऐसा, उनमें ऐसी क्या विलक्षणता है जो बहुत दूसरे आचार्यों में ये बहुत दुर्लभ ऐसा प्रतीत होता है। तो एक तो
उनकी एक ज्ञान परंपरा, जो जिस परंपरा से वो आ रहे हैं उसकी ओर एक बार हमारा ध्यान जाना चाहिए, तो उससे उनका वैशिष्ट्य सामने आता है। आप सभी जानते हैं कि आचार्य अभिनवगुप्त का संबंध आगम शास्त्र से है। आगम और निगम कोई विरोधी शाखाएं नहीं है, या ज्ञान की दो विरोधी धाराएं नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति को हम निगमागम मूलक संस्कृति कहते हैं। निगम अर्थात वेद, आगम जो तंत्र वांग्मय हमारा विशाल वांग्मय है, और दुर्भाग्य से इसकी बड़ी उपेक्षा हुई। कुछ तो निषेधात्मक अर्थ का दुष्प्रचार होने के कारण इसको, और दूसरा कारण यह भी हुआ कि इसको किसी भी विश्वविद्यालय तंत्र में जो इसका सम्मान होना चाहिए था, जो समादर होना चाहिए था, जो स्थान होना चाहिए था, वो अभी तक भी मैं समझता हूँ कि वह प्राप्त नहीं है। तो इस दृष्टि से इस दिशा में बहुत कुछ आगे करने की आवश्यकता होगी, और जो विद्वत वर्ग है वह निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देंगे, और उस दिशा में शोध और अधिक से अधिक अध्ययन अध्यापन के लिए सुविधा विश्वविद्यालयों में भी होगी। तो यह जो एक रिक्तता है, एक रिक्त स्थान है आगम को लेकर के, और उस रिक्त स्थान में बहुत सारी निषेधात्मक बातें भर दी गई हैं। इसके कारण इसका समाज में भी एक भिन्न दृष्टिकोण है, तो इससे इन सबका निराकरण हो पाएगा। तो पहले मैं इस आगम परंपरा की थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं, जिससे आचार्य अभिनवगुप्त की जो इस ज्ञान परंपरा में स्थिति है वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाए। तो ऐसा कहा जाता है, हमारी ज्ञान परंपराएं दैवी और मानुषी रूप से चलती हैं। कुछ दैवीय स्रोत हैं, और फिर उसके अनंतर जो मानुषी परंपरा है, ह्यूमन ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, जिसमें हमारे आचार्य हैं, जो उसके व्याख्याता हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक कालखंड जरूर रहा होगा, भले वह पूर्ण रूप से ज्ञात हो या ना हो, लेकिन वह इतिहास में निश्चित रूप से कहीं होंगे। तो यह परंपरा मानती है कि आगमों का आविर्भाव स्वयं भगवान शिव से हुआ, शिव पार्वती के संवाद के रूप में ये आगम उपलब्ध हैं, और इनमें द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत तीन शाखाएं हैं मुख्य रूप से। और इनमें जो द्वैत आगमों की संख्या है वह 10 है, द्वैताद्वैत 18 आगम हैं, और जो अद्वैत के आगम हैं, आगम ग्रंथ हैं, वो 64 हैं, जिनको 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कुल मिलाकर के जो 92 आगम ग्रंथ हैं, 64, 18 और 10, यही आगम शास्त्र के मूल में हैं। ये शास्त्र कहलाते हैं क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा भाषित हैं। मैं ज्यादा संस्कृत उद्धरणों में नहीं जा रहा हूँ, और शायद उपयुक्त भी नहीं है उतना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये व्याख्यान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और हम अधिक से अधिक अध्येता के रूप में उनसे जुड़ सके, आचार्य अभिनवगुप्त और पूरे तंत्र वांग्मय से। तो शिव जो दैवीय परंपरा से जैसे हम इसको जोड़ते हैं, तो स्वयं भगवान शिव ने इन आगमों का उपदेश महादेवगिरी पर अवतरित होकर, महादेव कश्मीर में है, तो वहां अवतरित होकर के कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा को उन्होंने इसका उपदेश किया, आगमों का उपदेश किया। और ऋषि दुर्वासा ने अपने 3 मानस पुत्रों को या शिष्यों को इसका उपदेश किया, जिनमें आमर्दक नाथ को द्वैत आगमों का, श्रीनाथ जी को द्वैताद्वैत आगमों का, और त्र्यंबक नाथ जी को अद्वैतवादी आगमों का उपदेश किया उन्होंने। इनकी संख्या मैं अभी बता चुका हूँ। एक और शाखा है जिसको अर्ध त्रयंबक के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये त्र्यंबक नाथ की पुत्री के मार्ग से, पुत्री के पक्ष से प्रवर्तित शाखा है। इन शाखाओं को पारिभाषिक शब्दावली में हम मठिका भी कहते हैं। तो 3.5 मठिकाओं में यह पूरी ज्ञान राशि आगमों की हमारे सामने उपस्थित होती है, और इसका आगे विस्तार होता चलता है। आचार्य अभिनवगुप्त भी अपने 2 प्रकार के गुरु वर्ग की चर्चा करते हैं। एक तो वो जो मठिका गुरु हैं, जिनसे उन्होंने साधना दीक्षा आदि ली है,
जिनके निर्देशन में उन्होंने साधना किया है, जिनसे वो दीक्षित हुए हैं, ऐसे भी गुरु हैं। और साथ ही वो भी जो जिनसे उन्होंने अन्य ज्ञान विधाओं का, जैसे काव्य शास्त्र, संगीत आदि, इन सब का, व्याकरण आदि का भी अध्ययन किया है, काव्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि, इन सब में। तो इस दृष्टि से ये जो 3.5 मठिकाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। Working on that. तो आप देखेंगे कि इन 3 शाखाओं को हम, जैसे द्वैत शाखा है उसको शिव तंत्र के नाम से जानते हैं, और यह नर रूपता को बताता है। शैव दर्शन की एक और संज्ञा है जिसको हम त्रिक कहते हैं। जैसे अभी मंगलाचरण में हमने मातृवान और मेय, मतलब जो प्रमाण है, प्रमेय है और प्रमाता है, इस कारण इसको त्रिक कहते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं इसको त्रिक कहने के, उन सब में अभी विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो 3 मुख्य शाखाएं हैं, द्वैत, द्वैताद्वैत और अद्वैत की, यह जो त्रिक है इस पर अभी विचार करते हैं। तो जैसे द्वैत शाखा है, इसको शिव तंत्र कहा जाता है, और इसको नर रूपता से संबद्ध बताते हैं। उसी तरह से श्रीनाथ जी की जो शाखा है वो द्वैताद्वैत परंपरा है, और इसमें 18 आगम ग्रंथ हैं। इसको रुद्र तंत्र की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, रुद्र तंत्र इसको कहते हैं। यह शक्ति रूपता को द्योतित करता है, इसको बताता है। त्र्यंबकनाथ जी की शाखा, जिसमें 64 आगम हैं, यह द्वैत शाखा है, और इसको भैरव तंत्र के नाम से जाना जाता है, और यह शिव रूपता को बताता है, संकेतित करता है। तो नर, शक्ति और शिव, इसके कारण भी इसको त्रिक कहते हैं। ये जो 3 प्रधान तत्व हैं, इसके कारण इसको त्रिक कहते हैं। तो यह भी इसके त्रिक होने का एक कारण है, जिसके लिए कहा जाता है नर शक्ति शिवात्मकम त्रिकम। अब यह शाखा आगे चलती है, जो त्र्यंबकनाथ जी की शाखा है, लेकिन आगमों का, आगम ग्रंथों का, आगम परंपराओं का ऐसा लगता है कि इस सुदीर्घ कालखंड में कई बार लोप हुआ और कई बार इनका प्रकाशन हुआ। तो त्र्यंबकनाथ जी के समय से लेकर के संगमादित्य तक 15 पीढ़ी के आचार्य हैं, 15 generations ऑफ ग्रेट आचार्यस। संगमादित्य 15वीं पीढ़ी के, फिर 15th जनरेशन के आचार्य हैं। और यह सूचना हमें 19वीं पीढ़ी में आने वाले आचार्य सोमानंद नाथ का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है शिव दृष्टि, उसमें इसकी सूचना हमें मिलती है। तो अपने से पूर्व के 4 आचार्यों का उल्लेख सोमानंद नाथ कर रहे हैं, जिनमें 15वीं पीढ़ी के आचार्य के रूप में संगमादित्य जी को, 16वीं पीढ़ी के आचार्य के रूप में वर्षादित्य जी को, और 17वीं पीढ़ी के आचार्य के रूप अरुणादित्य को, और 18वीं पीढ़ी में आनंद का उल्लेख करते हैं, और स्वयं को वो 19वीं पीढ़ी का आचार्य बताते हैं। सोमानंद himself belongs to the 19th generation of the great Shivacharya of non-dualistic tradition। एक और विलक्षणता यह है कि त्र्यंबकनाथ से लेकर के संगमादित्य से पूर्व तक की जो आचार्य परंपरा है वह सिद्ध परंपरा कहलाती है, और संगमादित्य से लेकर के सोमानंद जी के समय तक की जो शाखा है, सोमानंद जी का काल हमें पता है 8वीं शताब्दी ईस्वी है, 8वीं शताब्दी में सोमानंद नाथ। तो यह जो 15वीं से 19वीं पीढ़ी तक के आचार्य हैं वो पिता पुत्र की परंपरा से आ रहे हैं, और आगे की जो परंपरा है, मतलब सोमानंद नाथ जी के शिष्य उत्पल देव से लेकर के क्षेमराज जो अभिनवगुप्त के शिष्य हैं, यहाँ तक की जो परंपरा है यह गुरु शिष्य परंपरा के रूप में समादृत है। तो इसमें त्रिक एक और कारण से है, क्रिया ज्ञान और ज्ञान क्रिया, जो आगमों का वर्गीकरण है उसको भी ध्यान में रखें। तो क्रिया प्रधान तो सिद्ध तंत्र हैं, ज्ञान प्रधान नामक तंत्र है, और ज्ञान और क्रिया दोनों की जहाँ प्रधानता है वह मालिनी तंत्र है,
जो इस आगम शास्त्र का सर्वोपरि संभवतः प्रामाणिक भी और सर्वसमादृत ग्रंथ है। तो ये तो इनकी शाखा हुई। इसके बाद सोमानंद नाथ जी के शिष्य हैं उत्पल देव जी, जिनका बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ईश्वर प्रतिविज्ञा कारिका, जिस पर 2 टीकाएं आचार्य अभिनव गुप्त जी ने लिखी। एक तो स्वयं उनकी उत्पल देव जी की स्वयं ही वृत्ति है, जो आज उसके बहुत 6-7 फोलियोज उधर केरल की लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट लाइब्रेरी में मिली, 6-7 फोलियोज ही मिले। और वो भी आयुर्वेद के ग्रंथों में उन फोलियोज को रखा गया था। तो प्रोफेसर राफेल तोरेला ने संभवतः इसकी खोज की और उसको प्रकाशित भी किया है, लेकिन अभी तक पूरी वृत्ति वो मिलती नहीं। तो लेकिन आचार्य अभिनव गुप्त की जो 2 टीकाएं इस पर हैं विमर्शिनी नाम से, बृहति विमर्शिनी और लघु विमर्शिनी। तो इसमें बृहति विमर्शिनी में वो दोनों का उल्लेख करते हैं, दोनों को ध्यान में रख करके प्रतिविज्ञा कारिका और उस पर जो सौभाग्य वृत्ति जिसको कहते हैं ऑटो कमेंट्री, इन दोनों को ध्यान में रख करके वो अपनी बृहति विमर्शिनी की रचना करते हैं। और जो लघु विमर्शिनी के नाम से जानी जाती है जो टीका, या सामान्य रूप से विमर्शिनी के रूप नाम से जानी जाती है, वो प्रतिविज्ञा कारिकाओं पर है। ये प्रतिविज्ञा कारिका, जिसको प्रतिविज्ञा सूत्र भी कहते हैं, वो और इस पर जो टीकाएं उपलब्ध हैं, आचार्य अभिनव गुप्त की जो 2 टीकाएं हैं और स्वयं जो उत्पल देव जी की जो अपनी टीका है, आंशिक रूप में हमें खंडित रूप में प्राप्त है, यह इस शास्त्र के दर्शन पक्ष की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। तो सोमानंद जी के बाद उत्पल देव जी के शिष्य लक्ष्मण गुप्त और लक्ष्मण गुप्त जी के शिष्य अभिनव गुप्त, ये ज्ञान परंपरा चली आ रही है। और स्वयं आचार्य अभिनव गुप्त की भी शिष्य परंपरा बहुत ही सुविख्यात है, जिसमें क्षेमराज, मधुराज योगी, क्षेमेंद्र ऐसे शिष्य हैं। अपने कई शिष्यों का उल्लेख वो तंत्रालोक में करते हैं। तो इस पूरे ज्ञान राशि को हम इस दैवी मानुषी परंपरा में देख सकते हैं। अब इसका दूसरा पक्ष जरा ले लें तो और आचार्य अभिनव गुप्त की जो स्थिति है इस ज्ञान परंपरा में, वो स्पष्ट होती है। अभी मैं केवल तंत्र के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ, आगे देखते हैं दूसरी विधाओं में भी उनका क्या योगदान है और उनका क्या स्थान है, चर्चा करेंगे। तो भैरव शास्त्र या त्रिक शास्त्र को 2 प्रधान कोटियों में वर्गीकृत करते हैं। अच्छा, ये स्रोत है जो इस परंपरा के, त्र्यंबकनाथ जी की परंपरा या त्रिक परंपरा के जो अंतिम शैवाचार्य के रूप में जाने जाते हैं, स्वामी लक्ष्मण जी महाराज, जिनका 1991 में जिनका देहावसान हो गया, वो इस परंपरा के अंतिम आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, सबसे प्रामाणिक आचार्य, क्योंकि उनकी गति शास्त्र और साधना दोनों में। तो उनका एक ग्रंथ है त्रिक रहस्य प्रक्रिया, उसमें उन्होंने इसका कुछ वर्गीकरण और कुछ कोटियों का निर्धारण किया है। मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूँ, अपनी तरफ से इसलिए नहीं करता क्योंकि एक परंपरा के समादृत आचार्य ने जब उस पूरी परंपरा को स्वयं जिया हुआ है, तो उसका वर्गीकरण संभवतः हम सबके वर्गीकरण से कुछ विलक्षण और अधिक विश्वसनीय अवश्य होगा। इस दृष्टि से मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो ज्ञान प्रधान और योग प्रधान त्रिक की भैरव शास्त्र की ये 2 प्रधान शाखाएं हैं। ज्ञान प्रधान में कुल शाखा और प्रतिभिज्ञा शाखा है। कुल शाखा के आचार्य सोमदेव, उनके शिष्य सुमतिनाथ और उनके शिष्य शंभुनाथ हैं, जो आचार्य अभिनव गुप्त के गुरु हैं। अपने तंत्रसार में, अपने तंत्र की दीक्षा के लिए, अपने तंत्र में के अध्ययन के लिए वो इन्हीं के ऋणी हैं। इन्हीं के चरणों में बैठ करके उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित किया, अपनी साधना को। और प्रतिभिज्ञा शाखा जो है उसमें सोमानंद नाथ जी का भी उल्लेख हो चुका, जिनका ग्रंथ है शिव दृष्टि। उसके बाद उत्पल देव जी, उसके बाद लक्ष्मण गुप्त जी और लक्ष्मण गुप्त के शिष्य अभिनव गुप्त। तो आप देखिए कुल शाखा में भी अभिनव गुप्त आ रहे हैं
प्रतिविज्ञा शाखा में भी अभिनव गुप्त हैं। अब दूसरी जो योग प्रधान शाखा है उसकी ओर दृष्टिपात करें तो इसमें 2 शाखाएं हैं जिसको क्रम और स्पंद शाखा कहते हैं। तो क्रम शाखा की जो आचार्य परंपरा है, गुरु परंपरा है, इसको हम गुरु पर्व क्रम भी कहते हैं, है ना। तो इसमें शिवानंदनाथ और इसके बाद उनकी शिष्याएं जैसे केयूरवती, मदनिका, कल्याणिका, इनके माध्यम से यह ज्ञान राशि आगे बढ़ती है। इन्होंने श्री गोविंद राज जी को उपदेश दिया उन पर, और उसके पश्चात चक्रभानु और एरकनाथ जी हैं। तो चक्रभानु जी के जो शिष्य हुए उनमें उज्जटनाथ जी का और उद्भटनाथ जी का उल्लेख आता है, और इनके शिष्य फिर अभिनव गुप्त हैं। इसी प्रकार से जो स्पंद शाखा है, जिसका बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है स्पंदकारिका, वसुगुप्त के द्वारा प्रणीत माना जाता है। तो इस परंपरा में स्वयं वसुगुप्तनाथ हैं, ये भी 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं वसुगुप्त, जिनका योगदान शिव सूत्र के या तो रचना में है या उसके खोज में है, उसके संधान में है, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा उल्लेख है इन टीकाओं में कि उनको स्वप्न में ऐसा निर्देश हुआ कि महादेव गिरी के पास उसके नीचे एक विशाल शिलाखंड है जिस पर शिव सूत्र उत्कीर्ण है, उस पर लिखे हुए हैं, उनका उद्धार करो। तो वहां वो जाते हैं, अपने स्वप्न जैसे निर्देश हुआ था उसी अनुसार वो वहां पहुंचते हैं, और एक विशाल शिलाखंड वहां दिखता है जिसको स्पर्श करते ही वो शिला दूसरी तरफ पलट जाती है और उस पर शिव सूत्र उत्कीर्ण मिलते हैं, और उसका फिर उन्होंने उद्धार किया और एक ग्रंथ के रूप में वो हमारे सामने है आज। उसके पश्चात शिला अपने पूर्व अवस्था में चली गई। मैं यहाँ जरूर आपको एक इंगित करना चाहता हूँ, ये बहुत अद्यतन सूचना शायद आप तक पहुंची होगी। अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन बीते होंगे, उस शंकर पल को ध्वस्त करने की योजना बन चुकी थी और उसको खंडित करने का कार्य शुरू हो चुका था। तो खैर किसी तरीके से उसका पता चला और उस पर अभी रोक लगा दिया गया है उसको, क्योंकि हम ये समझते नहीं कि एक सामान्य शिलाखंड में, पत्थर के टुकड़े में और इसमें क्या भेद है। यह जो सांस्कृतिक बोध है, यह कितना आवश्यक होता है किसी सभ्यता के इतिहास में, शायद हम इस ओर ध्यान जितना हमें अपेक्षित रूप से देना चाहिए था वो हम दे नहीं पाए। हमारे लिए वो चाहे शिला एक सामान्य पत्थर का टुकड़ा हो या जिस पर शिवसूत्र उत्कीर्ण मिले हों, हमारे लिए इसमें कोई शायद भेद नहीं रह जाता। तभी इतनी संवेदना विहीन दशा में हम उसको खंडित करने जा रहे हैं। तो खैर ईश्वर कृपा से वह रुक गया है कार्य। तो इसी शिलाखंड पर ये शिवसूत्र उत्कीर्ण थे। फिर वसुगुप्तनाथ के शिष्य भट्टकल्लट और उनके शिष्य अभिनव गुप्त। तो आप देखिए, यही चीज मैं यहाँ आपके सामने, आप सभी सुधी विद्वान जनों के सामने लाना चाह रहा था कि कुल, प्रतिभिज्ञा, क्रम और स्पंद, अर्थात ज्ञान प्रधान शाखाएं और योग प्रधान शाखाएं, इन दोनों में ही आचार्य अभिनव गुप्त का अन्यतम स्थान। ऐसा कोई आचार्य शैव परंपरा में भी नहीं दिख रहा जिसकी कुल, प्रतिभिज्ञा, क्रम और स्पंद, इन सब में अबाध गति हो और वो प्रामाणिक ज्ञान रखता हो। भारतीय संस्कृति शास्त्र और साधना से संवलित है। वो केवल ज्ञान नहीं, जो शास्त्रों का ज्ञान है केवल वही नहीं, बल्कि उस ज्ञान को साधना की भूमि में हम कैसे अनुभूत कर सकें। और ये कोई नई बात नहीं है, आपको ध्यान होगा उपनिषद के समय से ही हमारे यहाँ विद्याओं की चर्चा आ रही है। तो एक प्रश्न है तैत्तिरीय उपनिषद का कि कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। मुंडक उपनिषद का, क्षमा चाहता हूँ, मुंडक उपनिषद का
कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। यह ज्ञान संस्कृति का देश है, ज्ञान इस संस्कृति के मूल में है। इसलिए हमने अपने आरंभिक ग्रंथ को या सर्वप्रथम ग्रंथ को वेद कह करके अभिहित किया है। वेद का अर्थ ही है ज्ञान, और स्वयं भारत शब्द का जो अर्थ है वह भी ज्ञान से संबद्ध है। भा का अर्थ ही है प्रकाश, रथ जो उसमें निमग्न है उसकी साधना में निरंतर जो जिसकी गति है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, आप जानते हैं। तो यह ज्ञान का देश है, ज्ञान संस्कृति इसकी इसी रूप में इस संस्कृति का वैशिष्ट्य है। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, तत्व है, जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, अर्थात सब कुछ ज्ञात हो जाता है। उसके उत्तर में जो ऋषि कहते हैं कि यह तो हमें पता नहीं, लेकिन ब्रह्मविद ऋषियों ने ऐसा कहा है। क्या कहा है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, और ये दो विद्याएं हैं, उनको जानना चाहिए, किसी की उपेक्षा नहीं है इन दो विद्याओं में से। मतलब जो मूल्यांकन है वह वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल है। मतलब कोई उच्च हो कोई निम्न हो ऐसा अर्थ नहीं है। इसलिए दोनों ही जानने योग्य हैं। और वो कौन सी हैं? परा और अपरा विद्याएं। अपरा विद्या के अंतर्गत सारे शास्त्र हैं, वेद उपनिषद ब्राह्मण आरण्यक जितने भी शास्त्र हैं वो अपरा की कोटि में हैं। और परा शास्त्र कौन सा है, परा विद्या कौन सा है? वैसे शास्त्र नहीं कहें तो अच्छा है, क्योंकि परा विद्या का कोई शास्त्र नहीं है। तो परा के पक्ष से वह अनुभूति गम्य है। शास्त्र में जो कुछ भी हम तर्क के स्तर पर पढ़ते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा हम किसी चीज को स्थापित करते हैं, उसकी अनुभूति भी हो, यह आवश्यक है। कहने को हम कह सकते हैं कि सर्वम खल्लमिदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वरमय है, ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। लेकिन ये तो हमारे लिए केवल शब्द मात्र है ना। इसकी अनुभूति होना एक विलक्षण बात हो जाती है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार का जो संवाद है, इस प्रसंग में जरूर उसको देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ नारद जी कहते हैं कि मैंने चतुर्दश विद्याओं का अध्ययन कर लिया, लेकिन मुझे सुख की प्राप्ति नहीं। और उसके लिए वो फिर सनत कुमार जी के पास जाते हैं। तो सनत कुमार जी ने उनको कहा कि आप केवल शब्दवित हैं, आप केवल मंत्रवित हैं, आप मंत्रवेत्ता हैं, शब्दवेत्ता हैं, आप आत्मवेत्ता नहीं, आत्मवेत्ता नहीं। यह बड़ी महत्वपूर्ण कोटि है। तो जो कुछ भी शास्त्र में हम ग्रहण करते हैं वह अनुभूति का भी विषय बन जाए, वह हमारे अनुभूति का भी अंग बन जाए, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए हम इसी क्रम में मैं कह रहा था कि हमारी संस्कृति शास्त्र और साधना की संस्कृति है, और इन दोनों का अंतर संबंध है, किसी को कम करके नहीं आंका गया। आप आचार्य अभिनव गुप्त के ही ग्रंथों को देखेंगे, तंत्रसार तंत्रालोक आदि में, तो कहते हैं कि बिना बौद्ध अज्ञान और पौरुष अज्ञान की वो चर्चा करते हैं और एक क्रम बनाते हैं। उसमें कहते हैं कि जब तक दीक्षा तो सर्वोपरि है, दीक्षा के बिना पौरुष अज्ञान समाप्त नहीं होगा, जो संसार का मूल कारण है। लेकिन दीक्षा के लिए क्या चाहिए? एक व्यवसायात्मक मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, है ना, निश्चयात्मकता जिसमें हो। तो वह जब तक बुद्धि के स्तर पर शंका बनी हुई है, जब तक बहुत सारे हमारे मन में ऊहापोह चल रहे हैं, तो इस शंका से ग्रस्त मन को लेकर के साधना में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहां कोई पूर्व पक्ष नहीं है साधना में, पूर्व पक्ष शास्त्र में होते हैं। तो बुद्धि के स्तर पर बुद्धि के संशय को या उसके कहें विचलन को दूर करने के लिए आवश्यक है कि पहले शास्त्र के द्वारा उसमें एक निश्चयात्मकता की स्थिति को हम ले आए। जब बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, तब वह हमारे आगे का मार्ग प्रशस्त कर देती है, कार्य हमारा आसान कर देती है। फिर उसके बाद वह साधक दीक्षा के उपयुक्त भी होता है और उसकी साधना की प्रक्रिया चल पड़ती है। तो इसलिए यह संस्कृति शास्त्र और साधना की संस्कृति, मैं इसलिए इस पक्ष को विशेष रूप से आपके सामने रख रहा हूं कि
यह संस्कृति शास्त्र और साधना की संस्कृति है और आचार्य अभिनव गुप्त का दोनों ही शाखाओं में, दोनों ही परंपराओं में अन्यतम स्थान है। एक बहुत ही शक्तिशाली समृद्ध परंपरा, चाहे वो कौल शाखा की हो, प्रतिविज्ञा की हो, क्रम की हो या स्पंद की हो, ये सारी ज्ञान राशियां, साधना और शास्त्र की जो परंपराएं हैं, ये आचार्य अभिनव गुप्त के विराट व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, जिसमें शास्त्र में भी वो निष्णात हैं और साधना में भी। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम आगे के चर्चा जो करेंगे। और जैसा कि अभी हमारी परम विदुषी प्रोफेसर वीणा अग्रवाल जी ने बताया कि उनकी गति केवल एक विधा में नहीं, अनेक ज्ञान विधाओं में उनकी अबाध गति है, और गति भी ऐसी कि वो प्रमाण रूप में उसमें जाने जाते हैं। उनको उद्धृत करके अपनी बातों की हम पुष्टि करते हैं या प्रवर्ती काल में विद्वान करते रहे। तो ऐसी स्थिति आचार्य अभिनव गुप्त के ज्ञान में, उनके दर्शन में ऐसी क्यों आती है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अपने समय के उन जिन जिन विधाओं में उन्होंने ग्रंथ की रचना की है, उस ज्ञान विधा के प्रामाणिक आचार्यों के चरणों में बैठ करके उन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण करके उन्होंने इन विद्याओं को अधिगत किया है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि पूर्व प्राप्त जो शाखाएं थी, जो परंपराएं थी, वो भी उनमें मूर्तिमान होती हैं, और साथ ही साथ उनमें एक नई ऊर्जा के साथ वो ज्ञान धाराएं आगे भी चलती हैं। तो जो कुछ भी प्राप्त और उससे भी ऊर्जास्वित रूप में, उससे भी शक्तिशाली रूप में, वो उसको हमें आगे की पीढ़ी के लिए समर्पित करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके करीब 41-42 ग्रंथों में आज करीब 24 के करीब ही उपलब्ध हैं, और संभव है कि इसमें से कुछ ग्रंथ पांडुलिपियों के रूप में अभी भी हमारे पांडुलिपि संग्रहालयों में उपलब्ध हों, जिनको यथाशीघ्र ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि पांडुलिपि कोई स्थायी चीज नहीं है, धीरे धीरे उसमें क्षरण होता है। हम जितना भी उसका प्रिजर्वेशन का काम करें, लेकिन जो एक काल की गति होती है उसमें निश्चित रूप से उसमें क्षरण होगा, उसमें और उनका नुकसान होगा। तो इस दृष्टि से यह हमें आवश्यक रूप से चाहिए कि जितना जल्दी हो हम उनके जो भी जहाँ भी उपलब्ध हो ग्रंथ जिस रूप में, उसको हम एक तो पहले उनको प्राप्त करें और फिर उनका संपादन आदि की व्यवस्था करें। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप से आगे की थोड़ी चर्चा मैं करना चाहता हूँ, और वो चर्चा स्वयं मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट से ही जुड़ी हुई। मैं उस ओर थोड़ा आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस संस्था से मैं प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत दिनों से जुड़ा रहा, और मैं तब की बात कर रहा हूँ जब इसकी डायरेक्टर डॉक्टर सुधा गोपाल कृष्णन जी हुआ करती थी। उस समय एक यूनेस्को के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाने की बात चल रही थी आचार्य अभिनव गुप्त पर, जिसको एक नाम दिया गया था, ए प्रपोजल फॉर नॉमिनेशन ऑफ यूनेस्को मेमोरी द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर। संभवतः ये डॉक्यूमेंट अभी भी आपके यहाँ उपलब्ध होगा। इसको तैयार किया था प्रोफेसर कपिल कपूर जी ने, और उस कार्य में हम सब साथ थे, मैं और मेरे सहकर्मी मित्र उससे जुड़े हुए थे। तो यह एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था। अब तो काफी समय बीत गया, इसलिए संभव है कि इसको और भी समृद्ध किया जा सके और किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ बातें रिकॉर्ड की गई थी, और वो बहुत ही जिसको एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं उसके आधार पर थी। और इसमें ये रिकॉर्डेड होगा, आप देखेंगे कि 248 जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं आचार्य अभिनव गुप्त के ग्रंथों के, वो हमें मिले थे इसमें, जिनको रिकॉर्ड किया हुआ है। और इनमें जो उनके सारे ग्रंथ तो नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आजकल छपे हुए रूप में भी मिल रहे हैं, उनकी पांडुलिपियां मिली, और उनकी चर्चा मैं आपसे थोड़ी देर में करता हूं। और ये लगभग 6 विधाओं में, ज्ञान विधाओं में उपलब्ध
उनके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ 8 लिपियों में उपलब्ध हैं, 8 लिपियों में, उनकी भी चर्चा मैं अभी कर रहा हूं आपसे। और इसके बाद ये ज्ञान परंपरा जो अपनी वैदिक आगमिक ज्ञान परंपरा है, इसको समृद्ध करने वाले ये ग्रंथ हैं। इसमें कुछ तो कारण है स्वयं कश्मीर में ऐसे आचार्यों का होना, क्योंकि कश्मीर ज्ञान की भूमि है, सब दिन से ज्ञान का केंद्र रहा। और वो केवल शैव दर्शन या शाक्त दर्शन का केंद्र नहीं है, वह साथ ही साथ वैष्णव जो ज्ञान परंपराएं हैं, वैष्णवागम हैं। और दर्शन की तो कई शाखाएं हैं, जैसे मीमांसा, मुकुल भट्ट वहाँ के आचार्य हैं कश्मीर के। इसी तरह से न्याय में जयंत भट्ट इतने सुविख्यात आचार्य न्याय के। और साथ ही काव्य शास्त्र के तो मैं समझता हूँ कि लगभग 90% आचार्य हमारे जो जिन्होंने एक विशेष योगदान दिया काव्य शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन को एक दिशा दी, आयाम दिया, ऐसे समादृत आचार्य कश्मीर के हैं। उनका नाम लूं तो एक बहुत बड़ी सूची हो जाएगी। जैसे आरंभी हम करें आनंदवर्धन से, तो आनंदवर्धन है, उनके टीकाकार के रूप में आचार्य अभिनव गुप्त हैं, भाम हैं, रुयक हैं, ये वामन हैं। इस तरह से मम्मट इतने बड़े आचार्य, कुंतक जो वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार हैं, ये इतने समादृत आचार्य हैं। ये रुयक जिनका अलंकार सर्वस्व है, जयरथ की बड़ी विचित्र स्थिति है। वो एक तरफ तो रुयक के अलंकार सर्वस्व पर भी टीका लिख रहे हैं, और स्वयं तंत्रालोक जैसे विशाल वांग्मय जो तंत्र वांग्मय का ग्रंथ है उसकी भी टीका लिख रहे हैं। तो ऐसे विलक्षण आचार्य हुए हैं वहां। और ये तो कश्यप भूमि है, आप जानते हैं, कश्यप ऋषि से जुड़ा हुआ नाम है कश्मीर। और इसका एक स्थल पुराण है जिसको हम नीलमत पुराण के नाम से जानते हैं। दुर्भाग्य से ये पूरी सारी चर्चा जो हम सामान्य रूप से अभी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य से न तो हमारे शिक्षण में कहीं है, न अध्ययन अध्यापन में है, न शोध में है ना। तो कितनी बड़ी क्षति या कितना बड़ा अभाव हम अपनी ही ज्ञान संस्कृति में एक उत्पन्न कर रहे हैं, या उसकी अनदेखा कर रहे हैं। यह हमें इस तत्वबोध के साथ साथ दायित्वबोध भी होना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कश्मीर बौद्धों का भी बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी, हारवन में। ये सारी प्रक्रिया या इतना बड़ा बौद्धिक विमर्श बौद्ध से संबंधित वहां चला था। और स्वयं नागार्जुन जो दक्षिण के आचार्य हैं, आंध्र के आचार्य हैं, आंध्र प्रदेश के, वहां से चल करके वो कश्मीर आते हैं और यहीं उनका स्थान बनता है। और इतना बड़ा योगदान उनका शून्यवाद आदि के रूप में हमारे सामने आता है। मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि ऐसा शायद इस ज्ञान संस्कृति के कारण ही संभव कि अपने सिद्धांतों को लेकर के एक वाद परंपरा जिस देश में चलती हो, वाद पारिभाषिक शब्द है जहां पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष दोनों मिलकर के या जितने भी उसके भागीदार हैं तो मिलकर के सत्य की स्थापना करने की चेष्टा करते हैं। ये इसी वाद परंपरा में, इसी ज्ञान की संस्कृति की वाद परंपरा में संभव था कि एक ही स्थान में बौद्ध, मीमांसक, न्यायिक, शैव, शाक्त, वैष्णव ये सभी हैं, वैदिक, आगमिक सभी हैं, और सब चर्चा में संलग्न हैं। और इसी के कारण, यही कारण है कि इतने समृद्ध ग्रंथ ज्ञान की दृष्टि से हमारे सम्मुख आते हैं। तो ये कश्मीर की विशेषता, ये शारदा मंडल है, शारदा देश इसको कहते हैं, इसकी तो देवी ही ज्ञान की देवी है ना। इस कश्मीर को पुनः अपने मूल रूप में, इसी रूप में जिस रूप में उसकी विश्व में विख्याति है, इसको समझने की भी आवश्यकता है, उसकी पुनर्स्थापना की भी आवश्यकता है। भारत को यदि कभी विश्व गुरु की संज्ञा मिलेगी तो इस कश्मीर की ज्ञान राशि की उपेक्षा करके नहीं मिल सकती।
यह तो निश्चित बात है, क्योंकि जितनी उपलब्धियां हैं उतनी उपलब्धियों को प्राप्त करने में तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों का समय गुजर जाएगा। जो आज सौभाग्य से हमारे सामने उपलब्ध है, हमारा उत्तरदायित्व तो सिर्फ इतना है कि हम उसको अध्ययन अध्यापन के क्रम में ले आएं और उन पर चर्चा करें और आगे की दिशा का निर्देश उससे प्राप्त करें। तो इस पृष्ठभूमि में मैं आपको 2-3 चीजों से परिचित कराना चाहता हूँ। ये निश्चित रूप से यह प्रथम परिचय नहीं होगा, आप सभी इतने विद्वान हैं। एक तो देखिए, जहाँ इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, मैं केवल थोड़ा आपके सामने उसका उल्लेख करूंगा, विस्तार से तो समय नहीं है अभी, लेकिन केवल मैं अभिनव भारती जो उनका ग्रंथ है, वो नाट्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर उनकी विश्व प्रसिद्ध टीका है। कोई आचार्य अपनी टीका को लेकर के किसी सिद्धांत के आचार्य से कम महत्व न रखता हो तो उसका उदाहरण, अन्यतम उदाहरण आचार्य अभिनव गुप्त है। वो टीका कहने के लिए है, केवल टीका ग्रंथ, उसका महत्व किसी भी मूल ग्रंथ से, शास्त्र सिद्धांत के ग्रंथ से कम नहीं। तो अभिनव भारती की भी टीका यदि देखें तो देखिए, ये मैं समझता हूं कि भारतवर्ष का इतिहास पांडुलिपियों और लिपियों के माध्यम से भी लिखा जाना चाहिए। इससे देश की अखंडता और एकात्मता भी सामने आती है। हम किस स्तर पर एक हैं, यह जो चैतन्य की एकात्मता है इस देश की, संस्कृति के बारे में हम कहते हैं कि यह बहुविध संस्कृति है, सांस्कृतिक वैविध्य है, अनेक संस्कृतियां इस देश में हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। तो यह सब तो ठीक है, यह कोई नई बात आज भारत के लिए नहीं है, इस सब दिन से भारत ऐसा है। और इसीलिए इन विविध पद्धतियों को समन्वित करने की चेष्टा हमारे आचार्यों ने की है। यह केवल पॉलिटिकल लेवल पर नहीं हो सकता, यह और भी गहरे स्तर पर, सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर पर होता है। इसलिए अद्वैत भारतीय चिंतन का एक प्रधान पक्ष है, और अद्वैत केवल वेदांत में हो ऐसा नहीं है ना। वेदांत में तो अद्वैत के कई प्रकार उपलब्ध हैं ही, जैसे शांकर वेदांत में जो अद्वैत है, या विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है आदि, ये सब शाखाएं तो स्वयं वेदांत के अंतर्गत हैं। इसके अतिरिक्त भी अद्वैत की कई शाखाएं हैं, जैसे यहाँ विज्ञानाद्वैत है, विज्ञानाद्वैत। इसके अतिरिक्त शून्याद्वैत जो आचार्य नागार्जुन द्वारा प्रवर्तित है। इसी प्रकार से भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन में, भाषा दर्शन में शब्द ब्रह्माद्वैत है। संगीत में नाद ब्रह्म का अद्वैत, संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, वो भी आचार्य सारंगदेव कश्मीर के हैं, 12वीं शताब्दी के, जिन्होंने आचार्य अभिनव गुप्त के मत को बड़े आदर्श के साथ प्रस्तुत किया है अपने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में। तो आप देख सकते हैं कि आचार्य अभिनव गुप्त की गति कितनी ज्ञान विधाओं में है। तो इन सब अद्वैतों को जोड़ करके भी हम देखेंगे तो भारत की जो या शिवाद्वैत है, शाक्त का अद्वैत है, तो अद्वैत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रधान चिंतन शैली हमारे यहाँ रही अद्वैत की। अद्वैत का मतलब मोनिज्म नहीं है, ये तो अब बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मोनिज्म नहीं है, ये है जहाँ विविध पक्षों का, विविध शाखाओं का, विविध मार्गों का जहाँ समाहार हो जाता हो, समन्वय हो जाता हो, तो हम अपनी विविधता में एक ऐसे ज्ञान का अनुसंधान करते हैं, भारतीय मानस करता रहा है सहस्त्राब्दियों से, जो इन सब को एक सूत्र में पिरो सके, और यही हमारे बड़े आचार्यों ने किया है। तो हम चर्चा तो करते हैं कि अनेक संस्कृति, अनेक, लेकिन इसके साथ 2 बातें हम रेखांकित करना भी आवश्यक समझते हैं कि एक तो सांस्कृतिक वैविध्य की चर्चा हम करते हैं, यह तो उसकी संपन्नता का भी सूचक है कि सांस्कृतिक रूप से अनेक संस्कृतियां रहती हैं इस देश में, अनेक संस्कृतियों का प्रचलन है, यह तो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि है। दूसरी बात हम भूल जाते हैं, भेद की तरफ तो चर्चा करते हैं, भेद के की बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इन सब के मध्य जो एक निरंतरता है, जो एक
सूत्रता है, यह निरंतरता और एक सूत्रता, और इसके साथ ही इन सब का समाहार जिस अद्वैत के पक्ष से होता है वह इस देश को अखंड बनाता है। और इसी की दिशा में आचार्य अभिनव गुप्त जैसे विद्वानों ने, आचार्यों ने, साधकों ने निरंतर कार्य किया है। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि आचार्य अभिनव गुप्त का व्याख्यान सभ्यता मूलक व्याख्यान है। इसके लिए इतनी बड़ी भूमिका मुझे बांधनी पड़ी। इस अद्वैत को समझना शायद इस दृष्टि से हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। अद्वैत का मतलब हम एक पक्ष की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अनेक शाखाओं में जो समाहार की स्थिति बनती है उसकी ओर हम ध्यान दिलाना चाह रहे थे आप सबका। तो कहने का ये अर्थ है कि उनका व्याख्यान सभ्यता मूलक व्याख्यान है, और ये बार बार वो इंगित करते हैं। रस सूत्र की व्याख्या में अभिनव भारती के प्रसंग से कह रहा हूं, जो नाट्यशास्त्र पर उनकी विश्व प्रसिद्ध व्याख्या है, तो छठे अध्याय में जब रस सूत्र की व्याख्या वो कर रहे हैं तो अपने से पूर्व आचार्यों के मतों का वह आभार भी उनके लिए प्रकट कर रहे हैं, और उसके पश्चात यह भी मान रहे हैं कि इन आचार्यों ने ये सोपान तैयार नहीं किया होता तो आगे चल पाना संभव नहीं था, है ना। तो अभी मैं उस उदाहरण में नहीं जा रहा हूँ, संस्कृत के उदाहरण में। तो कहने का ये अर्थ है कि एक ऐसा आचार्य और साधक हमारे सम्मुख है जो जिसमें भारत की कई ज्ञान राशि की शाखाएं और साधना की शाखाएं जिसके विराट व्यक्तित्व में आकर के सम्मिलित होती हैं। तो उनको पढ़ने का अनुभव एक भिन्न प्रकार का अनुभव होगा, जैसा कि अभी अध्यक्षा जी ने बताया भी कि उनके मानस में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है कि वो दर्शन का ग्रंथ लिख रहे हैं तो काव्य भिन्न है उससे, या काव्य का ग्रंथ लिख रहे हैं तो दर्शन उसमें नहीं आना चाहिए। यह वही आचार्य कर सकता है जिसकी इन सभी ज्ञान विधाओं में अबाध गति हो, ये उसी के लिए संभव है। इसलिए प्रतिविज्ञा विवृति विमर्शनी में अपने गंभीर दार्शनिक चर्चा में भी वो कालिदास को उद्धृत करते हैं, भवभूति को उद्धृत करते हैं। यह बड़ी ही विलक्षण बात है, यह शायद दूसरी जगह संभवतः देखा नहीं जाता दूसरे आचार्य में। तो उनकी दृष्टि इतनी परिष्कृत और इतनी व्यापक है कि हम उसमें संपूर्ण भारत को प्रतिबिंबित, उसके भारतीय चिन्ह को प्रतिबिंबित होते देख सकते हैं। और यही बात कहना है कि आचार्य अभिनव गुप्त को पढ़ना संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आत्मसात कर लेने जैसा अनुभव होगा। तो मैं केवल एक अभिनव भारती की चर्चा कर रहा, और इसी संदर्भ में मैं कह रहा था कि भारतवर्ष का इतिहास पांडुलिपियों के माध्यम से या लिपियों के माध्यम से भी लिखा जाना चाहिए। देखिए, कश्मीर का एक आचार्य कश्मीर छोड़ करके वो दूसरी जगह फिर गए नहीं, उन्होंने क्षेत्र संन्यास जब लिया तो कश्मीर से बाहर नहीं गए, लेकिन उनके ग्रंथ पूरे भारतवर्ष में पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। मैं केवल अभिनव भारती की ही चर्चा करूं आपसे, तो अभिनव भारती की पांडुलिपियां वाराणसी, कश्मीर में तो हैं ही, जोधपुर, तंजौर और कई पांडुलिपियां, एक से अधिक, तंजौर, फिर उसके बाद चेन्नई, इसके बाद मैं और और इधर कर्नाटक में, फिर आंध्र में, और यहाँ तक कि असम में, इन सभी क्षेत्रों में, बंगाल में, ये सभी क्षेत्रों में उनकी पांडुलिपियां मिलती हैं। और आपको ध्यान होगा उनके अपने शिष्य श्री मधुराज योगी वो दक्षिण के थे, वहां से चल करके 74 वर्ष की अवस्था में वो कश्मीर पहुंचते हैं, आचार्य अभिनव गुप्त का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, 4 वर्ष कश्मीर में रुकते हैं और ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, साधना आदि में निष्णात होते हैं, फिर से और ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार करके वो फिर अपने मूल स्थान दक्षिण में लौट जाते हैं। तो यह भारत उत्तर दक्षिण में बटा हुआ देश नहीं है, ये सब अंग्रेजों ने किया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जैसे होता है
विभाजन के लिए, लेकिन यह देश कभी भी बटा हुआ नहीं था। पंच द्रविड़ और पंच गौड़, ये पौराणिक विभाजन है अपने देश के, सांस्कृतिक विभाजन है, सांस्कृतिक वर्गीकरण है। तो इसी रूप में पूरा देश है, और इसलिए उत्तर दक्षिण के संवाद में कोई कभी भी कोई व्यवधान नहीं रहा। कश्मीर के आचार्य दक्षिण की तरफ भी गए हैं, दक्षिण से आचार्य कश्मीर भी आए हैं, राजा भी गए हैं, लोग का तो निरंतर आवागमन चलता रहा दक्षिण उत्तर सब जगह। कश्मीर कभी भी किसी भी कालखंड में पूरे भारतवर्ष से बिल्कुल पृथक रहा हो, ऐसा कभी देखा नहीं जाता। इसलिए इनके और भी जो दूसरे ग्रंथों की जो पांडुलिपियां हैं वह भी संपूर्ण भारतवर्ष में उपलब्ध रही हैं। तो इसलिए इनके ग्रंथों की व्याप्ति सब जगह है, और इसी क्रम में उनके ग्रंथों का समादर होना चाहिए और उनका अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह सुअवसर दिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। IGNCA का, NMM का और अपने मेंबर सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर हैं उन सब का, और आप मैम का, सब दोनों का बहुत बहुत आभार प्रणाम करते हैं। जी, मेरा व्याख्यान समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। एक व्यापक फलक पर आपने अभिनव गुप्त को प्रस्तुत किया, पूरे भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में, और उनके ज्ञान विज्ञान, उनका जो जितना व्यापक दृष्टिकोण हो सकता था, और पूरी आगम परंपरा से, निगम आगम परंपरा से कैसे हमारी परंपराएं कहाँ से प्रारंभ हुई हैं, और कैसे वहां अभिनव गुप्त कहाँ फिट होते हैं, फिट भी नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरी परंपरा को व्याप्त करते हैं। क्रम, कुल, प्रत्यभिज्ञा, स्पंद, सारी शाखाओं में उनकी अप्रतिहत गति थी। यह तो केवल दर्शन की बात हुई। तंत्र की बात, तंत्रालोक पूरा विश्वकोश जो उनका है, उसमें दर्शन भी है, तंत्र भी है और साधना भी है, कर्मकांड है। तो इतने ज्ञानी, यह तो केवल उनके एक दर्शन के एक ग्रंथ की बात हुई। इस तरह के उन्होंने 44 ग्रंथ लिखे हैं, और बहुत उपलब्ध होते हैं उनमें से, और जो नहीं उपलब्ध होते हैं उनके लिए भी आपने बताया कि जैसे वो खोज जारी है और कोशिश है कि वे भी सभी उपलब्ध हो सके, लेकिन जो उपलब्ध होते हैं वे भी उनके ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए, और ज्ञान जो असीमित ज्ञान, अपरिमित ज्ञान की जो बात हम करते हैं, वह लगभग ऐसा ही लगता है कि वह अपरिमित ज्ञान अभिव्यक्त हो रहा है उनके विविध ग्रंथों में। और जितनी बार पढ़ें उतनी बार नया नया ज्ञान, उन्हीं लाइनों में, उन्हीं पंक्तियों में हमें नवीन नवीन अनुभूतियां होती रहती है। यह भी उनके ज्ञान की एक विशेषता है। और बहुत सरल शब्दों में वो बात कह देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर अगर सर्वव्यापी है तो मंदिर की मूर्तियों की जरूरत कहाँ है, क्यों है मूर्तियों की जरूरत? तो उनके लिए जवाब है, ये उनका जवाब है, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि शायद ये जवाब आज हम इस तरह से यूज कर लेंगे। सर्वगो अपि मरुद यद्वद व्यजनेन उपवीजितः अर्थकृत सर्वगम मंत्र चक्र रूढ़े तथा भवेत्। बहुत बड़ी बात है। जो ये नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि हम तो मूर्ति के लिए नहीं जाते, तो भाई वायु तो सभी जगह है। फिर आप अलग से पंखा चलाते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों चलाते हो, क्यों AC चलाते हो? आपके वायु तो है, लेकिन उससे क्या है, वो आपकी घनीभूत हो जाती है। और जिस तरह से मंत्र है, चक्र उपासना है, या और जो उपासना है, मंडल आदि का जो तंत्रालोक में बहुत विस्तृत वर्णन है, मंत्र, चक्र, मंडल, और उसके द्वारा, याग आदि के द्वारा जो उपासना, उसकी क्या जरूरत और क्या उपयोगिता है? तो उसकी उपयोगिता यही है, जिस तरह से सर्वव्यापी वायु को भी हम कंट्रोल में कर लेते हैं, उसको भी हमारे हिसाब से घुमा फिरा लेते हैं, बिजली उत्पन्न कर लेते हैं पवन चक्की के द्वारा। तो ये है जवाब कि ईश्वर की अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह से कहते हैं कि जब आवाहन विसर्जन की बात होती है, तो ईश्वर का, अगर वो सर्वव्यापी है तो उसका आवाहन विसर्जन कैसे करेंगे? तो देवः सर्वगतो देव निर्मर्यादः कथम शिवः। अगर वो सर्वव्यापी है, निर्मर्याद है, कहीं भी उसकी कोई सीमा नहीं है, तो कहां से कहां बुलाएं? सर्वव्यापी को कहीं से कहीं हम बुला नहीं सकते। आवाह्यते क्षम्यते वेत्येवं पृष्ठो अब्रवीत विभु।
तो जब विभु के बारे में ये पूछा गया कि कैसे उसका आवाहन किया जाए, कैसे उसे क्षमा याचना की जाए, तो उसका जवाब यही है, वासना आवाह्यते देवी वासना च विसृज्यते परमार्थेन देवस्य नावहन विसर्जने। परमार्थ हम, चूंकि जो हम संकुचित लोग हैं, हम सीमित हैं, हम ही अपने आप में उनमें यह आरोपित करते हैं कि वे जैसे पधार रहे हैं या अब उन्होंने हमारा कार्य संपन्न कर दिया तो अब हम उन्हें विसर्जित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो स्वतंत्रता विश्व सिद्धि हेतु जो बात कही गई है कि अकेली चिति शक्ति जो है वह संपूर्ण विश्व को की सिद्धि कर सकती है, तो हमारी वासना जो है वह वासना ही आवाहित होती है, विसर्जित होती है। और इसी तरह से बहुत मतलब इन्होंने इस तरह के कई सूत्र मतलब दर्शन के सिवा भी कि वासना का या भावना का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में, यथा ही दुष्ट कर्मास्मीति एवं भावयतस तथा तथा शिवो हम नान्यो अस्मीति भावयतस तथा। जैसे कोई बुरा कीट भृंग न्याय की बात कही जाती है कि जब हम सोचते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा तो वो हो ही नहीं पाता, या कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बुरा काम करने वाला हूँ या वो जो भी है, तो वह वैसा धीरे धीरे बनने लग जाता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनने लग जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम शिवो हम तो निरंतर सोचते रहेंगे कि मैं शिव स्वरूप हूँ, तो निश्चित रूप से हम शिवता को प्राप्त कर सकेंगे। और इसी तरह से ये जो बात कही गई है, इन्होंने बहुत सी बातें कही है, खास तौर पे आवाहन विसर्जन की जो बात कही है, और हम कैसे शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, शिवता के बहुत सारे उपाय जो इन्होंने बताए हैं तंत्रालोक में, और ये सामान्य व्यक्ति वो सब कुछ नहीं कर सकता। तो सामान्य व्यक्ति के लिए सामान्य उपाय है कि जैसे हो वैसे बने, कोई भी विकार अपने भीतर लाने की जरूरत नहीं है। यथा स्थितस् तथैव आत्सु मा गा बाह्यम अंतरम केवलम चित विकासेन विकार निकरान जहि। जैसे आप वास्तविक स्वरूप आपका जो है, दिखावटी नहीं कि ये ऐसा है वैसा है, माँ गा बाह्यम अत अंतरम, भीतर बाहर मत करें कि मतलब मन में कुछ सोचे कुछ और करें, कुछ और बोले कुछ और, ऐसा नहीं। केवल चित विकास है, अपने चैतन्य के विकास से। और चैतन्य का विकास का मतलब ये है कि हम ये सर्वत्र शिवता की जो अनुभूति है, जो शिवत्व मुझ में है वही शिवत्व सब में है, यह अनुभूति जब हम प्राप्त कर सके, और इस तो फिर विकार निकरान जही, जो हमारे चित्त में जो काम क्रोध लोभ मोह आदि जो विकार है, अगर हम उन्हें छोड़ दें और सर्वत्र शिवत्व के दर्शन कर सकेंगे, तो फिर जो बात है वह कुछ और ही होगी। और इसी तरह से इन्होंने इनकी जो भक्ति परक स्तोत्र है वो तो बिल्कुल ही अलौकिक है। आपने जरूर संस्कृत के कोटेशन नहीं दिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो संस्कृत के कोटेशन के बिना बात ही नहीं कर सकती, तो आपकी कमी वो भी पूरी कर देती हूँ। इनके शिष्यों ने जो इनके लिए कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मधुराज योगी ही खास तौर पे कहते हैं, अभिनव गुप्त नाथ लिखितम लिखितम हृदय। अभिनव गुप्त ने जो लिखा है वह तो सीधे हृदय पर छा जाता है, उत्कीर्ण हो जाता है, अंकित हो जाता है। तद इतर शास्त्रकार लिखितम लिखितम सलिले, और जो दूसरे शास्त्रकारों ने लिखा है वो तो जल पे लिखा हुआ जो तो तुरंत मिट जाता है बिल्कुल ही। और जैसे कि स्व हृदय देवता मुख हुतम हुतम अग्नि मुखे तद इतर देवतासु निहितम निहितम भसिते। ये मुझे इस दर्शन की विशेषता लगती है कि ये दर्शन स्व को सबसे अधिक प्रमुखता देता है, चाहे ज्ञान उपाय के रूप में है चाहे अन्यत्र है। तो हम जो और जैसे हमारी वासना ही आवाहित की जाती है या हमें चिति शक्ति है जो वही प्रकट होती है बाहर भी, तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, तो स्व हृदय देवता मुख होतम, अगर हमें कुछ भी हवन करना है, और ये आप भी जानते हैं कभी प्रसंग हुआ तो ये भी अंतर्याग और बहिर्याग का जो क्रम है, जो बाह्य याग जैसे होते हैं उसी तरह से इन्होंने पूरी चेतना में याग का क्रम बताया है। तो स्व हृदय देवता में जो अग्नि का जो भी आप हवन कर सकते हैं, विकार है उनको आप हवन कर सकते हैं, तो वह वस्तुतः हवन है। अन्य देवताओं के लिए जो आप अग्नि में हवन करते हैं वह तो राख में हवन की भांति है। तो इस तरह की बातें हैं। और इन्होंने कहा है, खासतौर पे इन्होंने कहा
अभिनव सहकार मंजरीयम मधु मधुरम निज सौरभम वमंती रसयति नहीं केवलम वसंतम सकलम अतीतम अनागतम च कालम। हम आज जो बात कर रहे हैं अभिनव गुप्त की, इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो सहकार मंजरी आम्र मंजरी वो है जो वसंत काल में फैलती है, वह केवल उसी काल में नहीं फैली। अभिनव गुप्त की मंजरी आम्र मंजरी ऐसी है जो कि सकलम अतीतम अनागतम च कालम, पूर्व काल को भी उन्होंने, पूर्व आचार्यों के जितने, वो जैसा आपने बताया ही था है कि टीकाकार, किसी भी टीकाकार को मौलिक रचनाकार से अधिक महत्वपूर्ण होने का सौभाग्य नहीं मिला। ये अकेले ऐसे हैं जिन्होंने मौलिक रचनाकार से बढ़कर अपनी टीकाओं में, टीकाओं की वजह से वो मौलिक रचनाएं भी लोगों की समझ में आसानी से आ गई और वह स्पष्ट हो गई लोगों के लिए। इसका मुख्य कारण यही था कि इनकी जो टीकाएं थी वह मौलिक ग्रंथ के लगभग थी, मतलब उन्हें मौलिक भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो है, यह अतीत और अनागत और ये त्रिकाला बाधित रहेंगे तीनों कालों में। इनको हम हमेशा ज्ञान इनसे हम प्राप्त कर सकेंगे। और ज्ञान भी ऐसा नहीं है जो कि किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित है। जैसे सीधे सीधे छोटी छोटी सी बातों में इन्होंने व्यवहार से संबंधित बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी है। समय की सीमा होगी तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो इनके ग्रंथों में मोती भरे पड़े हैं और उन मोतियों को हम आज के संदर्भ में भी लोगों को निकालकर बिना किसी दार्शनिक तत्वबोध के, तत्वबोध का यह लेक्चर था और तत्वबोध के साथ दायित्व बोध की आपने बात कही है। इसके अतिरिक्त तत्वबोध का मतलब यही नहीं है कि हम दर्शन के बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करें, हम सामान्य व्यावहारिक जीवन के व्यावहारिक सिद्धांतों की भी बात कर सकते हैं। तो वह भी अभिनव गुप्त के सभी ग्रंथों में यत्र तत्र सर्वत्र मिलते हैं और उन्हें भी हम खोज के आज की पीढ़ी को बता सकते हैं कि ये देखिए यह कितने उपयोगी और कितने सरल सिद्धांत हैं। सीधी सी हवा की जैसी बात है, जैसे हवा सर्वत्र है उसी तरह से चेतना सर्वत्र है, उसी तरह ईश्वर सर्वत्र है। और किसी को भी हम बिजली की भांति, बिजली के सहयोग से जिस तरह से उसको उपयोग करने की भांति है, उसी तरह से हम इसका उपयोग, मतलब हमारी चेतना के विविध आयामों को प्रकट, उसको जागृत करने का कार्य हम दूसरे साधनों से कर सकते हैं। तो अभिनव गुप्त त्रिकालदर्शी ज्ञानी और साधक रहे हैं और हमेशा हम इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। धन्यवाद। कितनी बढ़िया व्याख्या है। जैसे हमारा स्पीकर प्रोफेसर रजनीश कुमार मिश्र जी, वैसे हमारा चेयरपर्सन प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी। अभिनव गुप्त कितने बड़े हम लोग सब जानते हैं, मगर आज जो आलोचना हुई है ना, इतनी बड़ी व्यापक रूप से हुआ है। और प्रोफेसर बीना जी तो एकदम चुन चुन के श्लोक जो आजकल का व्यवहारिक जीवन में भी उन दिनों में उनका सोच कैसे काम पे लगते हैं वो भी हुआ। और प्रोफेसर रजनीश जी तो उन्होंने कितने बड़ी माप का है तो बड़ी तरह से, ठीक तरह से बता दिया। हम लोग तो बहुत आभारी हो। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन तरह से मैम आप लोगों का आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि इतनी बढ़िया व्याख्यान हुआ। समय की कमी वजह से हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं कर पाएंगे। Shararul, if possible, can you leave the email address? अगर जो श्रोता सुन रहे हैं, अगर किसी का कोई और भी है, हम तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं है। इतनी बड़ी आकार में सब कुछ आलोचना हुआ आजकल दिन में परिप्रेक्षित में, और उनका जो कितने बड़े जो जोगी बोलो, कवि बोलो, कौन सी अभिनव गुप्त जी आचार्य बोलो, सभी है उन्होंने अकेला। किसी का कोई भी और जानकारी चाहिए तो ईमेल हम लोग दे रहे हैं स्क्रीन पर। प्रोफेसर रजनीश कुमार मिश्र जी का, प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी का, so that anything one can ask for more information, for any clarification, they can contact through email, because we cannot provide the question answer session because of paucity of time.
And sir, we want to publish the paper in our Tattvabodh lecture, Professor Rajni Kaushal. And बीना जी आप भी दे दीजिए एक पेपर, हम लोग, आप तो दूसरे साइड बोला है और रजनीश जी जरूर। पूरा भर्ती पूरा हो गया, एकदम साइंस संपूर्ण हो गया। यूजुअली वी पब्लिश तो स्पीकर को बोलती, मगर आपका भी इतने दृष्टिकोण है। आई एम लुकिंग आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। आप दोनों ही हमें 2 पेपर सबमिट करिए, ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल होगा, हम लोग ये हमारा तत्वबोध सीरीज में पब्लिश करेंगे। और सर हम लोग बहुत बहुत आभारी हुआ, आप लोग टाइम निकाल के आए हैं और इतने बढ़िया व्याख्यान दिए हैं और अलग अलग एस्पेक्ट मिलके पूरा कर दिया एकदम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सौभाग्य है आप सबने, और मैम को भी